ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چاہے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ ہاللیلویہ۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے بائبل مقدس کھولیے، مقدس لوکا کی انجیل مقدس اس کا 24واں باب اور پہلی 7 آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ 24واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات، اور بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے: سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو وہ شخص براق پوش پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ اور وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج بڑا ہی خوبصورت بابرکت موقع ہے عزیزوں کہ ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر کہ ہم خدا کے حضور آئیں، اس کی باتیں سیکھ سکیں، اس کے دیوے مکاشفات کو سیکھ سکیں اور ان پر مزید غور کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کا شکر ہو، کیونکہ اس سال بھی اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت سارے ایسے ہمارے دوست احباب جو ہمارے ساتھ نہیں رہے یا کسی وجہ سے ابھی اس عبادت میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن یسوع مسیح کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحت بخشی، تندرستی بخشی کہ پچھلے گزشتہ سالوں کی طرح آج اس سال بھی ہم عید قیامت المسیح منا سکیں۔ یسوع مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ایک تاریخی اعتبار سے حقیقت پر مبنی واقعہ ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ہسٹوریکل حقیقت اور سچائی ہے۔ دنیا میں ایک ہی عید اور عید قیامت منائی جاتی ہے اور وہ ہے عید قیامت المسیح جو ہمارے یسوع المسیح کی ہے، جو خدا نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا پر بھیجا تاکہ ہم جو خدا سے دوری، جو نسل انسانی جو دوری اختیار کر چکا تھا خدا سے، انسان جو گناہ کی وجہ سے، کیونکہ خدا گناہ کو ناپسند کرتا ہے اور اس وجہ سے انسان خدا سے دور ہوا اور گناہ میں جب وہ پڑ گیا تو پھر ایک الہی پلان کے مطابق اس نے اپنے بیٹے کو اس روئے زمین پر بھیجا، یسوع مسیح کو، تاکہ وہ آئے، فدیہ دے، اپنی جان قربان کرے اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی نجات دے۔ ایک ہی نام ہے اس دنیا میں جو اس طرح زندہ ہوا۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے جنہوں نے خدا کے بارے میں بتایا، بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے جنہوں نے بائبل کے بارے میں بھی بتایا، بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے جنہوں نے سچائی کی باتیں بھی بتائیں، بہت سارے ایسے لوگ آئے جنہوں نے معجزات بھی کیے، لیکن واحد ہستی، شخصیت،
पर्सनैलिटी यीशु मसीह की है, जो हमारी खातिर मर गया और मुर्दों में से जी उठा। और ये नाम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को ही बख्शा गया है, किसी और को नहीं। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए बड़ी अहमियत, जो मसीही है उसके लिए बड़ी ही अहमियत का हामिल है। हम देखते हैं आज इस कलाम में से देखेंगे कि जब यीशु मसीह जी उठा तो उसकी क्या बरकत हमें मिलती हैं। वो क्या बरकत है यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि नबियों ने भी मुर्दे जिंदा किए, यीशु मसीह ने खुद मुर्दों को जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया। हम सब इस मोजज़े से वाकिफ हैं, इसको जानते हैं, लेकिन वो सब के सब मुर्दे हो गए। वो सब के सब बिलाखिर मौत उन पर गालिब आ गई, वो सब के सब मर गए। लेकिन यीशु मसीह अजीजों हमारे लिए, जो हम ईमानदार हैं, जो हम मसीही हैं, बड़ी शादमानी की बात है कि यीशु मसीह हमारे लिए जब सलीब पर मुआ, हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम निजात पा सकें, तो वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने कहा, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। मसीह की फतह हमारे लिए बरकत है, क्योंकि मसीह यीशु जब जिंदा हुआ तो हमारी रूहानी जिंदगियों में बरकत आ जाती है। यीशु मसीह ने हमारा कफारा अदा किया। जब वो सलीब पर आया, सलीब पर मुआ, सलीब पर चढ़ा, सलीब पर मसलूब हुआ, तो उसने हमारा कफारा जब अदा किया, हमारी कीमत जब अदा की, तो उसने हमारी मुकम्मल कीमत अदा की, हमारा मुकम्मल कफारा अदा किया, हमारी पूरी कीमत अदा की। 50% कीमत अदा नहीं की उसने, 40% कीमत अदा नहीं की उसने 100%, 100% हमारी कीमत अदा की और हमें आजाद कर दिया। अंधेरे से आजाद करवाया, शैतान से आजाद कराया और हमें नजात बख्शी। मुकम्मल कफारा, बेश कीमत लहू बहाकर, पूरी कीमत देकर। और जब उसने पूरी कीमत, पूरा कफारा हमारा अदा किया, तो हमें पूरी आज़ादी मिलती है रूहानी तौर पर। पहले यीशु मसीह के आने से पहले हम आज़ाद रूहानी तौर पर नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद, उसकी कुर्बानी देने के बाद हम आज़ाद हो गए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिर जहां कहीं भी हम उसको पुकारते हैं वो मौजूद होता है। हमें उसकी हजूरी के लिए अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें उसकी हजूरी को हासिल करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। हमें पूरी हजूरी उसकी कुर्बानी से मिल गई। हमें पूरी आजादी उसकी लाजवाल बेमिसाल कुर्बानी से मिल गई। अब हम जब भी चाहते हैं हम बाप के पास जाते हैं, जब भी हम चाहते हैं हम उसको पुकारते हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद होता है। कोई टाइम की लिमिट नहीं है, कोई वक्त की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें पूरी आजादी है। उसने हमें बाप, बेटे और बेटियां का जो रिश्ता था उसको रिकनेक्ट किया। हमारा जो नस्ल इंसानी का जो डिस्कनेक्शन था, जो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो चुका था, उसको कनेक्ट किया और हम बाप के बेटे और बेटियां कहलाए। हालेलुया।
पूरी पूरी आजादी उसकी कुर्बानी से, उसके जी उठने से, पूरी पूरी नजात, माफी हमें मिल गई उसके जी उठने से। जब वो मुर्दों में से जी उठा तो हमें पूरी नजात मिली, हमें पूरी माफी मिली। जैसे कि जब वो सूली पर लटका हुआ था तो डाकू ने कहा और उसको कबूल किया कि अपनी बादशाहत में आए तो मुझे भी याद करना। उसने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। पूरी पूरी नजात, पूरी पूरी माफी तुझे अभी राइट अवे अभी मिलती है। जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, जब हम ये जान लेते हैं कि वो हमारा नजात दहिंदा है, जब हम ये जान लेते हैं कि वही हमारा शख्सी नजात दहिंदा है, उसने हमारा कफ़ारा अदा किया है, तो उसी वक्त हमें नजात मिल जाती है, तो उसी वक्त हमें मुकम्मल माफी मिल जाती है, पूरी पूरी माफी मिलती है और हमें आज़ादी हासिल हो जाती है। फिर उसके जी उठने की एक बरकत ये भी है कि जब उसने अपना कीमती लहू सलीब पर बहाया तो उसमें हमारे लिए ना सिर्फ रूहानी नजात बल्कि शिफा भी थी। हमें पूरी पूरी शिफा भी मिलती है। यीशु मसीह के लहू से हमें ना सिर्फ रूहानी तौर पर नजात मिलती है बल्कि उसके पाक लहू बहाए जाने से हमारे लिए शिफा भी है। उसका जब कतरा सलीब से बहा तो उसमें हमारे लिए शिफा भी थी, उसमें हमारे लिए नजात के साथ साथ शिफा भी, और पूरी पूरी शिफा, मुकम्मल शिफा भी हमें उसमें मिलती है। ये है उसके जी उठने की बरकत अजीजों। और फिर जब हम गौर करते हैं तो हमें जब देखते हैं कि मुकम्मल कफ़ारा, पूरी पूरी कीमत हमारी अदा की, तो हमें इसमें पूरी पूरी बहाली भी मिलती है। रेस्टोर करता है वो हमें, रूहानी तौर पर रेस्टोरेशन हमें मिलती है। और वो जब हमें बहाल करता है, जब हम उससे बरगश्ता हो जाते हैं, जब हम उससे दूरी इख्तियार कर लेते हैं, जब हम उससे दूर हो जाते हैं, तो वो हमें पूरी पूरी बहाली भी अदा करता है। वो चाहे रूहानी तौर पर बहाली हो, जिस्मानी तौर पर बहाली हो, खानदानी तौर पर बहाली हो, फाइनेंशियल माली तौर पर बहाली हो, वो हमें बहाल करता है अपने लहू के वसीला से और पूरा पूरा बहाल करता है। यह है उसकी बरकत, उसके मुर्दों में से जी उठने की बरकत जो हमें मिलती हैं जब हम उसे कबूल कर लेते हैं। ये कबूल करते हैं कि वो हमारी खातिर सलीब पर मुआ। हालेलुया। सलीब के निशान को फतह का निशान बना दिया। उसकी बरकत देखिए, एक ऐसा निशान जो रसवाई का निशान तस्वर किया जाता था, एक ऐसा निशान जो लानती निशान तस्वर किया जाता था, एक ऐसा निशान जो शर्मिंदगी का निशान तस्वर किया जाता था, लेकिन यीशु मसीह के लहू बहाने की वजह से वो निशान हमारे लिए फतह का और फखर का निशान बन गया। आज उस निशान को हम फखर से अपने सीनों पर लगाते हैं। आज उस निशान को फखर से हम अपने सरों के ताज में लगाते हैं। आज उस निशान को हम फखर से अपने मुल्कों के झंडों में लगाते हैं। आज उस फखर के निशान को हम फखर से कहते हैं कि ये हमारा निशान है, हम इसके फॉलोअर हैं, हम मसीही हैं। ये है उसके जी उठने की बरकत। यीशु मसीह ने रज़ाकाराना तौर पर अपना फिदिया दिया। किसी ने उसको फोर्सफुली सलीब पर मसलूब नहीं किया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना की इंजील में कि उसने अपनी मर्जी से अपनी रूह को खुदा के सपुर्द किया।
किसी ने नहीं उसको कहा। ये उसका इलाही इख्तियार, उसके पास जो अथॉरिटी है वो जाहिर करता है कि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा भी सेम टाइम उसी वक्त सलीब पर था। उसी वक्त उसने कहा कि मैं अपनी मर्जी से अपनी रूह और अपनी मर्जी से उसने कहा कि मैं अपनी रूह खुदा के सपुर्द करता हूँ। रज़ाकाराना तौर पर अपनी जान का फिदिया दिया और अपनी जान का फिदिया देने से हमें एक और बड़ी बरकत दी। जब उसने फिदिया दे दिया तो हम जो खुदा से दूर थे, जो दूरी इख्तियार कर चुके थे रूहानी तौर पर, हमें रास्तबाज ठहराया, हमें रास्तबाज बनाया गया। कोई रास्तबाज अपनी दुआओं की वजह से नहीं बन सकता, कोई रास्तबाज अपने कामों की वजह से नहीं बन सकता, कोई नस्ले इंसानी में से इस दुनिया में अपने काम की वजह से रास्तबाज नहीं बन सकता, अपनी दुआओं की वजह से नहीं बन सकता। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू से, उसके जी उठने से हम रास्तबाज ठहराते हैं और वो हमें रास्तबाज ठहराता है जब हम उसको कबूल करते हैं कि वो हमारा नजात दहिंदा है, शख्सी तौर पर मान लेते हैं, इकरार करते हैं कि वही हमारा नजात दहिंदा है, हमारा फिदिया देने वाला है, तो हम रास्तबाज ठहरा दिए जाते हैं। हमें गुनाहों से आजाद किया, साफ किया, बर्फ की मानिंद ऐसा साफ कर दिया। हमारा पास्ट, हमारा मादी, जैसे हमने कोई गुनाह नहीं किया, और ईमानदारों को सरबुलंद किया, पस्ती से निकाला और उनको सबसे कीमती गिफ्ट, तोहफा नजात का दे दिया। और लिखा है इब्रानियों पहला बाब और उसकी 3 आयत में, वो गुनाहों को धोकर आल में बाला पर किबरिया की दानी तरफ जा बैठा। उसने जब सलीब पर जान दी, हमारे गुनाहों से हमें आज़ादी दी, हमें पाक और साफ कर दिया। और एक बरकत ये भी है अजीज़ों, बहुत सारे लोग इस दुनिया में कहते हैं, उनकी सोच है, उनकी परसेप्शन है, थॉट है कि हम जब इस दुनिया में हैं तो हम काम करने आए हैं, हम जब इस दुनिया में हैं तो हम शादी करने आए हैं, फैमिली बनाने आए हैं, काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, एंड दैट्स इट, फिनिश, फुल स्टॉप। जब हम मर जाएंगे तो आगे कोई जिंदगी नहीं है। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो कोई जिंदगी नहीं है। बस इस दुनिया में हमने जो कर लिया, इसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, उसकी खाली कब्र इस बात की गवाही देती है कि मौत के बाद जिंदगी है और अबदी जिंदगी है मौत के बाद। वो मुर्दों में से जी उठने वाला पे लौटा है, और जितने ईमानदार मसीही जिनका ईमान उस पर है, जो उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, वो भी जब यीशु मसीह दोबारा आएगा लेने, जो सो गए हैं वो भी दोबारा जिंदा होंगे, वो भी दोबारा उठ खड़े होंगे और हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। और फिर ईमानदार मसीही रासबाज उसके साथ अब्दियत में दाखिल होंगे। इसलिए ईमानदार जो है, ये भी बरकत है, जो इस दुनिया में ईमानदार है, वो जब मरता है तो वो मरता नहीं है, वो सो जाता है। इसलिए ईमानदार है जो मसीही है, जिसका तवक्कुल, जिसका ईमान यीशु मसीह पर है, उसे पता है कि मौत के बाद मैं अब्दियत में यीशु मसीह के साथ दाखिल होऊंगा। हालेलुया। जब मसीही रासबाज
اس کو قبول کر لیتا ہے، یہ تمام برکات کے بعد اس کو ایک برکت یہ بھی ملتی ہے یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے کہ اس کے لیے ایک زندہ امید پیدا ہوتی ہے۔ اسے پتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے کوچ کروں گا تو میرے پاس ایک زندہ امید ہے، میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا۔ آج بھی جو روحانی طور پر مر گئے ہیں، جو روحانی طور پر مردہ ہیں، وہ ان کو زندہ کرنے کی برکت دیتا ہے اپنے مصلوب اور جی اٹھنے کے بعد۔ ہاللیلویا! اور بحال کرتا ہے، ریسٹور کرتا ہے۔ اس لیے عزیزو، ایماندار، ہم راست باز مسیحی، ہم شادمان ہوتے ہیں، ہم خوشی روحانی طور پر شادمانی مناتے ہیں، روحانی طور پر ہم خوش ہوتے ہیں کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہمارے لیے بیش بہا برکات ہیں، ہمارے لیے کئی برکات ہیں۔ ہم نا امید نہیں ہیں، کیونکہ جب وہ زندہ ہوا ہے تو ہمارے لیے نئی زندہ امید بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس لیے ایماندار، ہم جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم شادمانی مناتے ہیں، ہم اس کے حضور روحانی طور پر جشن مناتے ہیں۔ اور عزیزو، جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، چاہے ہم اس کو روحانی طور پر جب ہم قبول کرتے ہیں یا روحانی طور پر ہم کمزور کبھی کبھی ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں، جب بھی ہم اس کو پکارتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح، تو نے میری خاطر صلیب پر میرے لیے جان دی، یسوع مسیح تو نے میری خاطر صلیب پر فدیہ دیا، میری آزادی کے لیے، میری رہائی کے لیے۔ اب عزیزو، جب یسوع مسیح زندہ ہے، وہ زندہ رہے گا اور ابدالآباد زندہ رہے گا، تو ہم جو مسیحی ہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا یسوع مسیح زندہ ہے اور وہ فاتح ہے۔ اس لیے جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی ہم روحانی طور پر پریشانی میں آتے ہیں، جب بھی ہم جسمانی طور پر پریشانی میں آتے ہیں، جب بھی ہم خاندانی طور پر پریشانی میں آتے ہیں، دنیاوی طور پر پریشانی میں آتے ہیں، ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہوں کہ ہمارے پاس زندہ امید یسوع مسیح زندہ ہو چکا ہے اور ابدالآباد زندہ ہے۔ ہماری دعائیں، ہماری مناجاتیں سننے کو تیار ہے، صرف ہمیں پکارنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا! خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ زوردار تالیاں خدا کے پاک کلام کے لیے آج کے، کیونکہ خداوند کا پاک کلام ہی اس لائق ہے۔